बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। आपने मुझे मनरेगा के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। यहाँ पर अधिकतम माननीय सदस्य ग्रामीण अंचल से चुन के आते हैं। हमारे मतदाता जिनके हम वोट प्राप्त करके यहाँ पे आते हैं, वो इस नीति से बहुत प्रभावित होते हैं। मान्यवर, यहाँ उपस्थित सभी मान्य सदस्य जानते हैं कि मनरेगा में लोग अपना काम करने 10 बजे आते हैं और काम शुरू होता नहीं है कि लगभग 12 बजे वो घर लौट जाते हैं। वाह, क्या बात है। पूरा काम केवल कागजी और फर्जी। मनरेगा पर डिस्कशन शुरू हो गया क्या महोदय? जी महोदय, मनरेगा पे आज डिस्कशन शुरू हो गया। मनरेगा पे half an hour discussion. जी, पूरा काम केवल कागजी और फर्जी होता है। अपने विषय को बल देने के लिए मैं सीएजी की रिपोर्ट और योजना आयोग के सदस्यों की ग्रामीण यात्रा के बाद प्रस्तुत रिपोर्ट के कुछ अंग अंग्रेजी में पढ़ना चाहूंगा। मान्यवर, Let him finish, then I will call you. From 54 days of work per household in 2009-10, it fell to 43 in 2011 and 12. Job cards were not issued for 12,455 households in 6 states. In 31% of verified panchayats, Manrega annual plans were not prepared or were prepared incompletely and incompetently. Only 30%, which is 39 lakhs out of 129 lakh total of the approved works, were completed. 95 lakh cases of wrong wage calculation have been reported and found in 18 states. 1.1 lakh cases of wrong bill amounts for the purchase materials under the scheme have been found. 14,764 duplicate job cards found in Ranchi district of Jharkhand alone. 37,229 workers not paid unemployment allowances in 2 districts, only 2 districts of Assam. 2016 ghost workers found in 2 panchayats of Assam. States, prominently Uttar Pradesh and Madhya Pradesh and Haryana, do not maintain work inspection records. 18 to 54% of the Gram Panchayats checked showed irregular Manrega records. 39 districts were never visited by national level monitors of the ministry even once between the year 2007 and 2011. Sir, the Act guarantees at least 100 days of employment a year to at least one member of any rural household who is willing to perform unskilled labor for the minimum wage. This became a nationwide program in 2008. It aimed at halving poverty from 1990 to the year 2015. In 2012-13, sir, a massive amount of rupees 40,000 crores was set aside to be spent in 1 year of this policy. No cost-benefit analysis has been made. We do not know where this money is sinking and whether the village society or the family that is being impacted, no impact assessment was ever done either. Therefore, sir, 3 questions arise. How have eligible workers accrued benefit? Second, whether these benefits have persisted over time. And third, how useful were the projects undertaken by Manrega? Unemployment levels in rural sectors should have reduced with this policy. However, unemployment on a current daily status was at 8.28% in 2004-2005, and in 2009-10, unemployment rose to 9.4%, of which 7.3% was urban labor force and a staggering 10.1% of rural labor force. There is a large part of the Indian labor force which is underemployed.
As we all know, sir, in agriculture, most of the agriculturists, the children of farmers, do not get employment and are so completely underemployed in looking after that small plot of land that they have inherited. Hence, a good implementation should have helped meet a basic need in rural India. However, the figures given by the Government of India show a disappointing performance with deteriorating figures. The average person days per household employment in Manrega in 2009-10 in Arunachal Pradesh were 14, but in 2011 and 12 they came down to 6. In Uttar Pradesh they were 51 in 2009-10, but in 2011-12 they came down to 30, and the country average dropped from 46.83 to 32. The country was assured that 50 million families could get employment at the cost of rupees 40,000 crores. However, the audit showed a sad picture. Completing 100 days of work was used to monitor this policy. In 2009-10, Arunachal Pradesh, nobody completed 100 days of work, 0. And in 2010-11, yet nobody completed 100 days of work, 0 again. In Uttar Pradesh, only 7 people managed to complete 100 days of work. But in 2010-11, this figure dropped to 1.9. On a nationwide, the data presented by the government on a nationwide basis, 7.08 in 2009-10, which dropped to 1.39 in 1.39 in 2010-11. Percentage of expenditure undertaken of funds set aside in 6 years. In 2006-7, Arunachal Pradesh 18.27, but in 2011-12, Arunachal Pradesh dropped to 1.36. In Madhya Pradesh, 87.30, but in 2011-12, it dropped to 69.60. Completed work against planned work. In 2006-7, Arunachal Pradesh completed 18.27 projects, but this dropped to, in 11-12, dropped to 1.36%. Jammu and Kashmir, 68.92%. In 2011 and 12, it dropped to 39.66. And the overall national picture, 47.15% in 2006-7, and in 2011-12, 20.25. Sir, the clause 11C of this Act, functions and duties of the Central Council. It empowers reviewing, monitoring, and redressal mechanism from time to time and recommend improvements. Similarly, the clause 3B, State Council functions and duties, empowers it to determine works. It empowers it to determine works, but since most of the councils are headed by officers who are usually transferred at the whims and fancies of state governments and central governments, who are not answerable to the people, little improvements have been made apart from the continuing terrible performance which I have just read out. The government, so I had asked for this. I'm just concluding it. The government should consider changing the heads of these committees by elected representatives. Public representatives can do an intensive monitoring because we carry on to visit our constituencies and we do not get transferred, and so we can observe the durability of the projects and their cost effectiveness. Assessment was done according to 4 criteria: average number of days worked per household, percentage of households completing 100 days of work, percentage of allocated funds spent, and percentage of work completed. The performance has been dismal. In current economic crisis of high fiscal and current account deficits, the nation needs an efficient system, local participation of farmers, transparency and public accountability has to be put into place to justify such huge national expenditure. Effects of recession, loss of jobs, shortages of income on one hand, and the lack of money and the rising prices on the other. Just to give you a comparative, sir,
In the year 2011-12, rupees 38,371.32 crores were spent on giving fuel subsidy. Okay. Manrega has 17,000 crores which is unspent. This amount alone is 44% of the fuel subsidy. This itself has had a substantial effect on the village economy. Okay, please. So let me complete it, sir. I've asked for this topic. You have taken 10 minutes. You have to take 10 minutes. Sir, the CAG 2013 has observed that there was rampant record manipulation and no filing of muster rolls. The block development officers who are in charge of this were issuing checks in their own names. Manrega is creating an agricultural labor deficit, especially during peak harvesting and sowing times. Manrega is turning into a sinkhole that is contributing to the fiscal deficit of our country. Corruption at all stages, long delays in payments, local officials and panchayats are siphoning off funds earmarked for projects, and project activity is dull. Yes. Workers are moving away from their mainstay of agriculture. An officer has observed that projects of digging pits in the name of ponds are undertaken under Manrega, but water from these pits evaporates and seeps very fast. Poor people cannot depend on government for unskilled employment, sir. Okay. This cannot be done in perpetuity, and it is harming the farmer. Sir, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे केवल 1 मिनट और दीजिए। मनरेगा के द्वारा देश के अमूल्य धन को गड्ढे खोदने व गड्ढे भरने में लगाया जा रहा है। यह तो योजना आयोग और CAG की रिपोर्ट के द्वारा स्थापित हो चुका है। मनरेगा के कारण क्या पिछले 9 वर्षों में ग्रामीण सड़कों की स्थिति में सुधार आया है? यहाँ पे इतने सदस्य बैठे हैं, हम सब कह सकते हैं कि एक भी ग्रामीण सड़क की स्थिति में सुधार नहीं आया है। क्या मनरेगा के कारण कोई भी दीर्घकालिक लाभ ग्रामीण अंचल में स्थापित हुआ है? पट्टे धारकों के लिए तालाब बनाने की योजना है मान्यवर, मगर मैं अपने क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के पट्टे धारकों को केवल आधा एकड़ की जमीन उपलब्ध कराई जाती है। इस छोटे से जमीन के टुकड़े में क्या वे जलाशय बनवाना चाहेंगे? किसी भी काम का वास्तविक सत्यापन नहीं हो रहा है और शिकायत करने से केवल प्रधान को जांच में थोड़ा और पैसा देना पड़ता है, किंतु कोई भी सदुपयोग की काम नहीं हो पा रहा है। एक अर्थशास्त्री का वक्तव्य मान्यवर, मैं अपने भाषण विषय को समाप्त कर रहा हूं। इट इज वाइजर टू डाइवर्ट फंड्स टू बेटर इंप्लीमेंटेड स्कीम्स रादर देन स्टिक विद मनरेगा दैट इज क्लियरली अ फेलियर। एक और इस अथाह धन की बर्बादी और दूसरी ओर किसान के सामने मजदूरों की समस्या में ध्यान रखते छोड़ना ही पड़ेगा मान्यवर, तभी इस गरीब देश के 40,000 करोड़ रुपए Marketing only you have to put a question, clarification only you have to ask. The other members which we are calling, you have to put a only clarification. You have asked a clarification to minister, not a speech. Speech won't be allowed. Therefore, you put a question or any clarification wanted for a minister regarding the subject, you call it. Because the half-an-hour discussion, only the initiator can take 10 minutes, he can explain things. Then after others, when they are giving chance, you have to take 1 minute, put a question. Which Thank you, Honorable Chairman, sir. Don't give the minister. धन्यवाद। सम्माननीय सभापति महोदय, मैं सम्माननीय सदस्यों ने हमारे देश की बहुत महत्वपूर्ण योजना जो ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के साथ रोजगार के साथ जुड़ी है उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और मैं उनके सभी सुझावों पर बहुत गंभीरता से सरकार विचार करेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में हमारे सदन में जो चर्चा हुई है उसमें अनेक सम्माननीय सदस्यों ने गैर प्रकार भ्रष्टाचार की तकरार पर कहा और विशेष रूप से महात्मा गांधी नरेगा में सुधार और परिवर्तन लाने की जरूरत है, ये भी बताया है। श्रीमान कुंवर भरतेंद्र सिंह जी, RK सिंह जी, प्रोफेसर थॉमस, जनार्दन मिश्र जी और इसके पहले भी जिन सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है उनकी सबकी बातों का बहुत गंभीरता से सरकार ने उसको लिया है और इसलिए उन्होंने जो अपेक्षा व्यक्त की है उसमें ये योजना और प्रभावी रूप से किस प्रकार से काम करेगी
और ग्रामीण क्षेत्र में एसेट कैसे डेवलप करेगी और रोजगार की निर्मित कैसे करेगी, इसके लिए भी सरकार गंभीरता से सोच रही है। एक बात जरूर है कि जिन राज्यों में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ज़्यादा है, जीडीपी ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, वैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र का कुछ भाग, गुजरात, इन प्रदेशों में स्वाभाविक रूप से खेती में मजदूर नहीं मिलते हैं। और कुछ प्रदेश में ऐसे भाग है जो ट्राइबल सेक्टर में है, जंगल में है, जो पिछड़े हुए हैं, जहां गरीब लोगों को रोटी नहीं मिलती, जिनको काम नहीं मिलता। और इसलिए उस समय सरकार ने इस योजना को लाते समय इन सब बातों का जिक्र किया है। पर शायद उस समय यूपीए सरकार को चुनाव की जल्दबाजी होगी, इसलिए इस योजना का जितना गंभीरता से विचार होना चाहिए उसमें से कुछ लैप्सेस रही है, और जिसके कारण कुछ बातें आज हमने आप सब लोगों ने हमारे सामने लाई है। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि महात्मा गांधी का नाम इस योजना के साथ जुड़ा हुआ है, और सरकार इसलिए किसी भी प्रकार से इस योजना को कहीं भी हम लोग अड़चन में नहीं आने देंगे, इसके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी हो, इसकी पूरी चिंता करेंगे। और जो ग्रामीण मजदूर है उनको रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जो आपने कहा 60-40, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं जब से आया हूं तब से मुझे सब एमपी मिलते और इसके बारे में तकरार करते। अभी जनार्दन मिश्रा जी ने यही बात कही है, अगर वैल्यू एडिशन करना है तो ग्राम पंचायत के लेवल पर 60-40 का रेशो रखा गया है। ये योजना पार्लियामेंट ने अपने एक्ट को, नियम को बनाकर मंजूर किया हुआ कानून है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें हमको अधिकार क्या है, मंत्रालय को क्या है, इसका हमने अध्ययन किया है। अध्यक्ष महाराज, मुझे बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि हम इसको थोड़ा सा बदल कर रहे हैं। जिला स्तर पर हम लोग 51% इस रेशो में लाकर हम स्वाभाविक रूप से वैल्यू एडिशन हो, अच्छा काम हो, इसके लिए सुधार करके ये रेशो लागू करने का निर्णय सरकार ने किया है। अब ये आप कहेंगे कि इससे आगे जा सकते हैं क्या, तो इसमें अनुमति नहीं है। ये पहला प्रयोग करेंगे, और इसके बाद भी अगर आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो आप जरूर हमारे पास आइए, इसमें से हम लोग जरूर सोचेंगे। और इसलिए सामग्री के लिए 49% जो 40 था, वो 51% लेबर के लिए। दूसरा, ये पहला जो रेशो था 60-40 का, ये ग्राम पंचायत के लेवल पर था। अब हम इसको जिला स्तर पर ला रहे हैं, और जिला स्तर पर लाने के कारण भी इसमें और प्रकार की अनुमति आप सबको मिलेगी, इसमें अड़चन नहीं आएंगी। मैं विशेष रूप से वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूं, और पानी से देश में समृद्धता आ सकती है, गरीबी दूर हो सकती है। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। यही संकल्पना पर मेरे डिपार्टमेंट का बहुत जोर है, और इसलिए मेरा आप सब सदस्यों से एक आह्वान है कि वाटर कंजर्वेशन के जितने प्रोग्राम है उस सब प्रोग्राम के लिए आप ज़्यादातर इसमें प्रायोरिटी दीजिए। अगर हमारे यहाँ जितना बरसात आती है, पानी आता है, उसमें 15 से 20% तालाब और डैम में जाता है, 15 से 20% कंजर्वेशन होता है, और 60% ऑफ पानी जो है हमारा वो समुद्र में बह जाता है। क्या हम सब लोग समुद्र में बहने वाले पानी को बचा सकते हैं? अगर ये हमने बचाया तो ना सूखा आएगा, कुएं को 24 घंटे पानी आएगा, और इसमें से गरीबी दूर हो जाएगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एमएलए है अमरीश पटेल, और उस समय मैंने सोनिया जी को और प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। उन्होंने शिरपुर करके धुलिया जिले में, सातो जी को पता होगा, वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और मैंने हमारे अधिकारियों को वहाँ भेजा। और जो शिरपुर पैटर्न करके महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हुआ है, उसमें ज़मीन के अंदर जाकर उन्होंने 35 फीट तक नीचे गए और नीचे गए, और एग्जिस्टिंग जो हमारे नाले थे उसको विड्थ बढ़ाया, और इसमें जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी भी इन्वॉल्व है। ज़मीन का कुछ स्ट्राटा ऐसा होता है जो पानी पीता है, और कुछ स्ट्राटा ऐसा होता है जो पानी को बह देता है, पानी पीता ही नहीं। तो हम लोग नीचे तक जाए और ज़मीन का स्ट्राटा जब पानी पीने वाला लगेगा उसको टी करके कंक्रीट का ब्लॉक लगा दे, तो पानी पीने की प्रक्रिया 3 गुना 4 गुना ज़्यादा बढ़ती है। वर्धा जिला जो गांधी जिला करके प्रसिद्ध है, उसी जिले में मैं भी एनजीओ जैसा काम करता हूँ। तामसवाड़ा करके गांव है, उस गांव में एक बार पहली बार जब मैं गया था तो वहाँ लोगों के शरीर पर कपड़े नहीं थे, पर जैसे ये 9 किलोमीटर का चेक डैम बना, अध्यक्ष महोदय, वहाँ कम से कम आज गांव की गरीबी दूर हो गई, गाड़ियाँ आई, हीरो होंडा आई, और गरीबी दूर हुई, और कुएं को 24 घंटे पानी आया। तो मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार में हमारे सभी सांसदों से मैं अपील करूंगा कि इसमें मदद करिए। ये 49-51% से
वाटर कंजर्वेशन के काम को तो ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, इसमें गांव की गरीबी दूर होगी। 24 घंटे कुओं को पानी मिलेगा। और हमारे अर्थ मंत्री ने इस बार 1 लाख पंप सोलर वाटर पंप के लिए अनुमति दिया है। और सोलर वाटर पंप पर अगर हमारे कुएं में 24 घंटे पानी होगा और हमारे किसान को 24 घंटे पानी और 24 घंटे बिजली मिलेगी तो गरीबी होने का सवाल है नहीं। पानी से 2.5 गुना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा और देश की तरक्की होगी, और इसलिए इसका जरूर उपयोग किया जाएगा। इसमें आपने जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्पादक काम, जिसमें ग्रामीण और कृषि में उत्पादन बढ़े और मजदूरों का आर्थिक विकास की वजह से रोजगार मिले, इसके लिए एक परिशिष्ट में सुधार करके हमारे यहाँ जो राज्यों में लघु सिंचन तालाब है, नहर और जल संसाधन के काम है, और जिसमें महाराष्ट्र में हमारे यहाँ मालगुजारी तालाब कहते हैं जो सरकार जमा हुए हैं, उन सब तालाबों के बारे में जो आपने सही कहा आर.के. सिंह साहब ने कि हम उसको अनुमति दे रहे हैं। इसके बाद इसके बारे में हमारे तरफ से इन सब बातों के लिए हमने इसको इंक्लूड किया है और राज्य सरकार ये कर सकती है। दूसरी एक बात है कि ये टीम इंडिया वाली बात है। ये जब कानून बनाया, मैं आपको दोष नहीं देता, एक मेरा पूरा होने दो, तब आपने क्या किया, सेंट्रलाइज ऑफ पावर विद सेंट्रल गवर्नमेंट कर लिया और राज्य सरकार को इसमें कुछ ज़्यादा अधिकार नहीं दिए। मैं आज सदन में यह जाहिर करता हूं कि राज्य सरकार भी 49-50% के आधार पर अगर कृषि के क्षेत्र में, जल संवर्धन के क्षेत्र में रोजगार देते समय अगर कोई नए कामों के बारे में अगर ऐड करना चाहता है तो राज्य सरकार को भी इस प्रकार के कामों को ऐड करने की अनुमति हम देंगे। ये भी बात मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूं। अध्यक्ष, एक इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास अभी तक 3641 तकरारें आई हैं और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार, हेराफेरी, गलत मास्टर रोल बनाना, पैसों का गबन करना, मजदूरी जो है 2 हफ्ते में दिया जाना, विलंब करना, इन तकरारों के बारे में गंभीरता से आर.के. सिंह साहब जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है और इसमें बहुत प्रकार की इरेगुलरिटीज हुई है और इसलिए मैं भी सोच रहा था इसका उपाय क्या है। तो हैदराबाद के जो रिमोट सेंसस के डायरेक्टर है उनको मैंने हमारे यहाँ बुलाया, सब ग्रामीण विकास के अधिकारियों को बिठाकर देखा और हमने 2 प्रकार के निर्णय किए हैं। एक तो फ्लाइंग स्क्वाड तो हम रखेंगे ही, और आपने सही कहा है, हमारा अधिकार है ये, हम इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि इसमें ऊपर उचित कड़क कार्रवाई करना। आपने बिल्कुल सही बात कही है और उसका हम अमल करेंगे। अब भारत में अंतरिक्ष में जो प्रगति हुई है उसका प्रयोग करके ग्रामीण योजना में जो काम हो रहा है उसको स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सकता है क्या, इसके ऊपर मैंने मीटिंग कराई थी और मेरे ध्यान में जो आया है कि रिमोट सेंसस के द्वारा हम लोग इसके बारे में जो भ्रष्टाचार है उसको एक सेक्शन यहाँ दिल्ली में बना रहे हैं और हर काम जो राज्य सरकार करेगा उसका स्पेस की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मॉनिटरिंग कक्ष हम दिल्ली में रखेंगे और वहाँ तो अब इतनी टेक्नोलॉजी हुई कि आप रास्ते पे चलने भी लगेंगे तो भी हम लोग रिमोट सेंसर से चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सा ड्रेस पहना है। तो इसके बाद पूरा चेकिंग यहाँ कक्ष होगा और हम चेकिंग करेंगे और जो भ्रष्टाचार करेगा, जो यहाँ गबन करेगा, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाएगी, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। इसमें एक दूसरी टेक्नोलॉजी आई है, वो इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। ये ई गवर्नेंस का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा हम मजदूरों को डायरेक्ट कैसे उस प्रकार से उसकी मजदूरी मिले इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और इसके कारण डिले नहीं होगा। मैं तो डिले होगा ही नहीं ये आपको आश्वासन दे रहा हूँ, पर अगर समझो इसके बाद 2 सप्ताह का अगर डिले हो गया तो हम उसको एडिशनल पैसा देंगे और जो सरकार नहीं देते है वहाँ उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्योंकि आपने डिले क्यों किया है। पैसे की कमी नहीं है इसमें और इसलिए ये भी काम हम निश्चित रूप से करेंगे। जहाँ तक मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि इन सब बातों में बहुत से सदस्य मुझे कहते हैं और उसमें अड़चन है, क्योंकि जो बातें मुझे करनी लायक है तो मैं कहता हूँ। अब जो जैसे सातव जी बता रहे थे कि खेती में गेहूं और चावल लगाते उसको काटने का काम मजदूर करते, वो भी नरेगा में लाओ, तो ये नहीं हो सकता, फिर ये योजना का कोई अर्थ नहीं होगा। पर कृषि क्षेत्र में जैसे हम लोग कुछ बंधारे बनाना चाहते हैं, कुछ और ऐसी योजना है कि जो उस किसान को उसका फायदा मिल सकता है। एक जस्ट मेरे पूरा होने दीजिए। Minister is not yet completed. Now, please. हिंदुस्तान परिवर्तन हो गया आज तो। Please. Now 6 o'clock. सर 2 मिनट में खत्म। No, just a minute. Now it is 6 o'clock. The House may be extended till the minister's reply, and also 0 hour we will take. Therefore, Minister reply.
Anugopal, please take yours. मैं आपको सम्मानीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, राज्य सरकार ही नहीं तो आप में से जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं वो सब लोग मिलकर नरेगा में कौन से काम लेना चाहिए, ऐसे आपके भी सुझाव होंगे तो हमारा माइंड ओपन है। आपके जो जो सुझाव होंगे स्वीकार कर सकते हैं, उसको स्वीकार करके उसके ऊपर हम अमल करेंगे। द पर्पज ऑफ द एक्ट इज कि उसमें हम लोग वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाना चाहते हैं। ये आपकी बात सही है कि ये 60-40 में ये केवल पैसे बांटे जाते थे, वैल्यू एडिशन नहीं होता था। और इसलिए मैं सम्माननीय अध्यक्ष महोदय आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस योजना के बारे में हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रिमोट सेंसर से पूरा मॉनिटरिंग करेंगे। मजदूरों को ई गवर्नेंस का उपयोग करके जो मैंने आपको कहा इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा उनको तुरंत मजदूरी मिलेगी, इसकी व्यवस्था करेंगे। राज्य सरकार को इसमें नए काम कुछ लेना है तो हमारे प्रिंसिपल में जो जिला स्तर पर हमने 49-51% रखा है उसमें राज्य सरकार नए काम ऐड कर सकते हैं, उसको अनुमति देंगे। और इसके अलावा आपके क्षेत्र में जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अलग क्षेत्र है, क्योंकि ये सही है हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रश्न और समस्या है। अब वहाँ का ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में वैल्यू एडिशन का कोई नया काम आप बताओगे और वो अगर 160 काम ऑलरेडी यादी में है, राज्यों को भी अधिकार दिए, इसके अलावा और कोई अच्छा काम है तो वो भी हम खुले दिल से आपके सुझाव को भी स्वीकार करेंगे और इस पर अमल करेंगे। मैं फिर से एक बार सम्मानीय सदस्यों का आभार मानता हूं कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर यह चर्चा उपस्थित की और इसके बारे में श्री विक्रम चीजें जो भी किए हैं असेट हो सकता है उसमें कामयाबी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता जिसमें कामयाबी है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो स्कीम को हम खत्म। अरे स्कीम खत्म करने की बात कहाँ कही भाई? You raised your स्कीम खत्म करने की बात कहाँ कही? This man is Off now. You have called him. He's not going into the what is the use? It is not going to record. No. Mic is off. Call member, sir. Vikram Kushandik.